সুখময় সত্যপতি মহাশয়। এখন যে মানুষটি এক ঝলক দর্শন ও বক্তব্য শোনার জন্য আমরা অধীর আগ্রহে বসে আছি, সেই মহান রাষ্ট্রনায়ক তথা আমাদের সবার প্রিয় প্রাণপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী মাননীয় নরেন্দ্র মোদীজি মহাশয়কে তার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য বিনম্র অনুরোধ জানাই। आज इस झारग्राम के पुण्य भूमि पर कुछ शब्द कहने के लिए हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री महोदय को मैं अनुरोध कर रही हूँ। इससे पहले এখন আমি বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি আমাদের স্টেট প্রেসিডেন্ট ডক্টর সুকান্ত মজুমদার মহাশয়কে। ভারত মাতা কি। কি ব্যাপার, ঝাড়গ্রামের কি হলো? আওয়াজ নবান্ন পর্যন্ত যাওয়া চাই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন আওয়াজ দূর দূর तक जाना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। মহান দেশের মহান নেতা নরেন্দ্র মোদী, নরেন্দ্র মোদী, জেপি নাড্ডা, জেপি নাড্ডা। भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। বন্ধুগণ, আমার ভাষণ সম্পূর্ণ করে ফেলেছিলাম, কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে নির্দেশ এসেছে আরো কিছুক্ষণ আপনাদের সামনে আমাদের এই মঞ্চ থেকে সম্বোধিত করার জন্য। আর কিছুক্ষণের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনাদেরকে সম্বোধিত করবে। আজকে আমাদের চরম সৌভাগ্য যে আজকে ঝাড়গ্রামে আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হয়েছেন ভারতবর্ষের জনমন অধিনায়ক, ভারতবর্ষ নয় পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা নরেন্দ্র মোদী। জোরে হাততালি দিয়ে তাকে স্বাগত জানাবেন। আমাদের মায়েরা আছেন নাকি? আমরা মায়েদেরকে দেখতে পাচ্ছি না, একবার হাত তুলুন তো মহিলারা। মায়ের একবার জোরে উলু দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাবেন। জোকার দিন, দাদারা হাততালি দিবেন। আজকে আমরা সত্যিই সৌভাগ্যবান যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, যাকে বলছিলাম যে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা, গোটা পৃথিবী যার দিকে তাকিয়ে থাকেন তিনি আমাদের মাঝে এসেছেন। আমাদের প্রার্থী তরুণ তুর্কি নেতা ডক্টর প্রণব টুডুর সমর্থনে আজকে যেই সভা, সেই সভা করার জন্য প্রণব টুডুকেও জোরে হাততালি দিয়ে আরও একবার আপনাদের সমর্থন জানাবেন, আপনাদের আশীর্বাদ দেবেন তাকে জয়যুক্ত করার জন্য। মঞ্চে উপস্থিত আমাদের জেলার সভাপতি তুফান মাহাতো মহাশয়, উপস্থিত আমাদের রাজ্যের সম্পাদক আমাদের উমেশ রায় মহাশয়, আমাদের এদিকে রাজ্যের দুজন নেতা, একদিকে দেবতনু ভট্টাচার্য তথা আমাদের রাজ্যের আরেকজন নেতা যিনি এই জেলার প্রাক্তন সভাপতি ছিলেন, বিশিষ্ট শিল্পী সুখময় সৎপতি, যাকে আমরা জহরদা বলে চিনি। উপস্থিত সামনের সারিতে আমাদের দুজন বিধায়ক, আমাদের মনোজদা মনোজ ওরাও এবং তার সাথে বুধরাই টুডু, তপনের বিধায়ক যিনি আমার লোকসভা কেন্দ্র থেকে এসেছেন। উপস্থিত আমাদের এসটি মোর্চার রাজ্য সভাপতি আমাদের লড়াকু নেতা জুয়েলদা, জুয়েল ওরাও। জুয়েলদা একবার দাঁড়াবেন, আপনার পরিচয় করে দিই। জুয়েলদাকে জোহার জানান আপনারা সবাই। জুয়েলদা আমাদের এসটি মোর্চার সভাপতি, তিনি আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন। উপস্থিত আছেন আমাদের আরও একজন বিধায়ক পুনা বেংরা মহাশয়, তিনিও আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন। আমাদের এসটি সমাজের 4জন বিধায়ক আমাদের এই লোকসভাতে কাজ করছে। এছাড়া রাজ্যের বিভিন্ন নেতৃত্ব আছে, সবার নাম আমি নিতে পারছি না, সময় খুব সীমিত। আমাদের প্রার্থীর সমর্থনে তারা এসেছেন আমাদের রাজ্য কমিটির বিভিন্ন সদস্যগণ, রাজ্যের পুরনো নেতৃত্ব, জেলা নেতৃত্ব, জেলার সাধারণ সম্পাদকগণ, জেলার সহসভাপতি, মণ্ডল সভাপতি থেকে শুরু করে প্রত্যেককে গৈরিক অভিনন্দন। এবং তার থেকেও বড় কথা, এই ঝাড়গ্রামের লড়াকু কর্মীরা যারা লক্ষাধিক সংখ্যায় এখানে উপস্থিত হয়েছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে দেখার জন্য, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে শোনার জন্য, নিজেদের জন্য একবার জোরে হাততালি দেবেন। জোরে হাততালি দিয়ে নিজেদেরকে স্বাগত জানাবেন, নিজেদেরকে অভিনন্দন জানাবেন। বন্ধুগণ, আমি যেরকম আগে বলছিলাম
এই লোকসভা ভোট শুধুমাত্র কে প্রধানমন্ত্রী হবে শুধু সেটা ঠিক করার ভোট নয়। এই লোকসভা ভোট ঠিক হবে যে ভারতবর্ষ বিগত 10 বছর ধরে যে সামনের দিকে এগিয়ে চলছে, 5th গিয়ার এগিয়ে চলছে, সেই গাড়ি আরো সামনের দিকে যাবে নাকি চোরেদের হাতে পড়ে আবার পেছনের দিকে যাওয়া শুরু করবে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত যে কয়েকটি সিটে ভোট হয়েছে তাতে দেশের মানুষ ঠিক করে ফেলেছে যে 270-এর বেশি সিট দিয়ে তৃতীয়বারের জন্য অলরেডি 270 সিট হয়ে গেছে, তৃতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী হতে চলেছেন নরেন্দ্র মোদী। তিনি আবার প্রধানমন্ত্রী শপথ নিতে শুরু করেছেন। আমাদের বিরোধীরা সেই জন্য তারা এখন বিভ্রান্ত, তারা বুঝতে পারছে না কি করবে, মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আর এমনিতে গরম, আমরা শুনেছি গরম বাড়লে নাকি যাদের মাথার খারাপ থাকে তাদের মাথা খারাপ নাকি আরো বেড়ে যায়। আমরা মুখ্যমন্ত্রী যে সমস্ত কথা বলছেন আমরা অবাক হয়ে শুনছি, আমরা জানি না তার শারীরিক অবস্থা কেমন আছে, আমরা চাই তিনি সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। কিন্তু তিনি কি বলছেন, বিজেপি শাসিত রাজ্য থেকে ইভিএম আসছে, ভোট দেওয়ার পর 5% নাকি ভোট বেড়ে যাচ্ছে। আমি ছোটবেলায় বন্ধুগণ যাকে টিউশনি পড়তে যেতাম, আমার সাথে এক বন্ধুও যেত, সে কোনোদিনও পড়া করে আসতো না। আর পড়া করে না এলে পরে মাস্টারমশাই যখন জিজ্ঞেস করতো আরে পড়া করিসনি কেন, তিনি বলতেন যে আজকে মাস্টারমশাই পেটে ব্যথা ছিল, আজকে কোমরে ব্যথা ছিল, হাতে ব্যথা ছিল। আর মাস্টারমশাই তাকে মারতেন আর বলতেন মানুষের 3টে হাত, বাম হাত, ডান হাত আর হচ্ছে অজুহাত। তো মুখ্যমন্ত্রী এখন থেকে অজুহাত দিতে শুরু করেছে, কারণ মুখ্যমন্ত্রী জানে 30-এর বেশি আসন নিয়ে বিজেপি এই রাজ্যে আগামী দিনে ক্ষমতায় আসতে চলেছে। 30-এর বেশি আসন আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে উপহার দেব। কিন্তু এই 30টার মধ্যে ঝাড়গ্রাম থাকবে কি থাকবে না? থাকবে। তাহলে সেইভাবে আমাদেরকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে মন্ত্র, প্রতি বুথে বুথে যেতে হবে, বুথে বুথে গিয়ে এই চোরেদের কাহিনী বলতে হবে। এই চোরেরা এমন কাজ করেছে, গোটা বাংলার মাথা নিচুতে নামিয়ে দিয়েছে, গোটা বাংলাকে আজকে অপমান করেছে মুখ্যমন্ত্রী। রামকৃষ্ণ মিশন, ইস্কন, ভারত সেবা সংঘকে অপমান করছে, বাংলার মহিলাদেরকে অপমান করছে, একের পর এক ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। সন্দেশখালীতে বন্ধুগণ আপনারা দেখেছেন, আমরা গেছিলাম, আমি গেছিলাম নিজে ব্যক্তিগতভাবে, সন্দেশখালীতে ঢুকতে দেওয়া হয়নি, আমাকে অ্যারেস্ট করার চেষ্টা করা হয়েছিল, আমাকে হসপিটালে যেতে হয়েছিল। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যদি মনে করেন যে সুকান্ত মজুমদারকে, বিজেপির নেতাদেরকে হসপিটালে পাঠিয়ে পুলিশ দিয়ে অ্যারেস্ট করে রুখে দেব, আটকে দেব, আমি এই মঞ্চ থেকে বলছি মুখ্যমন্ত্রী আপনি মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন। যত বাধা দেবেন, যত রক্ত ঝরাবেন, যত ঝরাবেন রক্ত, যত ঝরাবেন ঘাম, তত বাড়বে পদ্ম ফুলের দাম, তত বাড়বে পদ্ম ফুলের দাম, এখানে পদ্ম ফুলের দাম তত বাড়বে। তাই বন্ধুগণ আগামী এই লোকসভা নির্বাচন ভারতবর্ষকে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ দেশের পরিণত করার লড়াই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, গ্যারান্টি দিয়েছেন যে 10 বছরে যেটা দেখেছেন ওটা তো শুধু ট্রেলার, ফিল্ম এখনো বাকি আছে, সিনেমা এখনো বাকি আছে, সিনেমা সামনের দিনে দেখা যাবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে আমি এরকম বলছিলাম, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প গোটা ভারতবর্ষে চালু হয়ে গেছে, কিন্তু সেই প্রকল্প এখানে চালু করতে দেননি মুখ্যমন্ত্রী। আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 5 লক্ষ টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন মানুষকে, তার 60% কেন্দ্র সরকার দেয়, 60% কেন্দ্র সরকার দেয়, তার 40% রাজ্য সরকারকে দেওয়ার কথা। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে না, কার্ডে কেন প্রধানমন্ত্রীর ছবি থাকবে, নরেন্দ্র মোদীর ছবি থাকবে, সেই জন্য উনি আয়ুষ্মান ভারত কার্ড নাকি চালু করতে দেবে না। আজকে এই মঞ্চ থেকে আমি মুখ্যমন্ত্রীকে প্রশ্ন করতে চাই, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই দেশটি ভারতবর্ষ, আমার আপনার প্রাণের ভারতবর্ষ, সেই ভারতবর্ষের আয়ুষ্মান ভারতের কার্ডে আমাদের ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীর ছবি থাকবে নাকি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর ছবি থাকবে, সেটা মুখ্যমন্ত্রী বলুন, সেটাকে ঠিক করে বলতে বলুন। আজকে বন্ধুগণ সেই জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সিদ্ধান্ত নিয়েছে, আমি উনি আসার আগে ভাষণে বলছিলাম যে রাজ্য সরকারের এই 40% টাকা দেওয়ার দরকার নেই। 70 বছরের বেশি যাদের বয়স, আপনার বাড়িতে আমার বাড়িতে যারা কাকামশাই, জ্যাঠামশাই, ঠাকুরদা যারা আছেন, যাদের বয়স 70 বছর বা আগামী 6 মাসের মধ্যে 70 বছর হবেন, তাদের জন্য প্রধানমন্ত্রী ঠিক করেছেন সরাসরি তাদেরকে কেন্দ্র থেকে বছরে 5 লক্ষ টাকার আয়ুষ্মান ভারতের প্রকল্প দেবেন, রাজ্য সরকারের উপর আমাদের নির্ভর করতে হবে না। আজকে 3 কোটির উপরে বাড়ি দিয়েছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী।
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গ্যারান্টি দিয়েছেন 24 থেকে 29 সাল 5 বছর আপনাদেরকে ফ্রিতে রেশন দেবে। এটা মোদির গ্যারান্টি, মোদির গ্যারান্টি। কি রেশনে গেলে ফ্রিতে চাল পাচ্ছি তো? পাচ্ছি তো? তো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই গ্যারান্টি দিয়েছেন। তৃণমূলও একটা গ্যারান্টি দিয়েছে। সেটা কি গ্যারান্টি? যে মোদিজি চাল পাঠাবে আর গ্যারান্টি সহকারে ওরা চুরি করবে। মোদিজি চাল পাঠাবে আর ওরা চুরি করবে, এটা গ্যারান্টি। দিতে পারবে না কিছু, চুরি করতে পারবে। তাই এই চোরেদেরকে আমাদেরকে তাড়াতে হবে। এই চোরেদেরকে পশ্চিমবঙ্গে রাখা যাবে না। এই চোরেদেরকে যদি রাখেন তাহলে পরে আপনাদের সুবর্ণরেখা নদী যেরকম চুরি হয়ে গেছে, প্রত্যেক জেলায় জেলায় নদী চুরি হচ্ছে। প্রত্যেক জেলায় জেলায় আপনার ত্রিপল থেকে শুরু করে বন্যার যে ত্রিপল আসে সেই ত্রিপল চুরি থেকে শুরু করে গরু বাজার থেকে শুরু করে আজকে আমি শুনে অবাক হয়ে গেলাম। আমার কর্মীরা বলছিলেন যে আজকে এই ঝাড়গ্রাম জেলার মধ্যে দিয়ে গরু পাচার চলে যাচ্ছে, পুলিশ নাকি গরু দেখতে পায় না, গরু পাচার আটকাতে পারে না। পুলিশ শুধুমাত্র তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের তাবেদারি করতে ব্যস্ত, তাদের বাড়ির চাকরের কাজ করতে ব্যস্ত, পুলিশের বাইরে অন্য কোনো কাজ করতে পারে না। আজকে এই পুলিশকে পরিষ্কার বলে দিতে চাই, এখন লোকসভা নির্বাচন, ভুলে যান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন, এখন কাজ করছে নির্বাচন কমিশনের আন্ডারে। নির্বাচন কমিশনের আন্ডারে মেরুদণ্ড সোজা রেখে কাজ করুন, পুলিশের সম্মান পাবেন, না হলে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের মতো আপনাদের সাথে ট্রিটমেন্ট করব। তাই আমি আমার বক্তব্যকে দীর্ঘায়িত করব না। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এখন উনি আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে জোরে একবার হাততালি দিয়ে স্বাগত জানান, অভিনন্দন জানান। বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা নরেন্দ্র মোদীকে স্বাগত জানান, অভিনন্দন জানান। ভারত মাতা কি, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। जय मां काली, जय मां दुर्गा। ঝাড়গ্রামবাসী के আমার জোহার, আপনাদের সকলকে আমার বিনম্র নমস্কার। साथियों, अभी मुझे तामलुक की सभा में जाना था, लेकिन वहां वेदर ठीक नहीं होने के कारण मेरा हेलीकॉप्टर वहां लैंड नहीं कर पाया। लेकिन तामलुक के हजारों लोग अभी टेक्नोलॉजी से इस सभा के साथ वहां जुड़े हुए हैं, तो एक प्रकार से मैं एक साथ 2 सभाएं संबोधित कर रहा हूं। मैं तामलुक के लोगों का क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन मुझे खुशी है इस समय तामलुक के हजारों लोग भी मुझे वहां रैली स्तर पर सुन पा रहे हैं और स्क्रीन पर मुझे देख पा रहे हैं। साथियों, आज 5वें चरण का मतदान लगभग पूरा होने पर है। बंगाल में टीएमसी और पूरे देश में इंडी गठबंधन ये पहले पस्त थे, 5वें चरण में ये परास्त हो चुके हैं और 4 जून को ये समाप्त होते दिखाई देंगे। इंडी गठबंधन के बिखरने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इतनी बड़ी संख्या में आपका आशीर्वाद ये साफ साफ कह रहा है, फिर एक बार आभार, एक बार
आभार एक बार साथियों, हार सामने देख पूरी टीएमसी का आक्रोश चरम पर है। बंगाल के लोग इनको वोट नहीं दे रहे हैं, इसलिए कभी बीजेपी को गाली, कभी बंगाल के लोगों को धमकी। कल तक टीएमसी कांग्रेस को गाली दे रही थी, अब वो कह रही है हम इंडी गठबंधन का हिस्सा है। लेकिन बंगाल के लोग जानते हैं कांग्रेस ये डूब चुका जहाज है और टीएमसी के जहाज में भी छेद हो चुका है। ये दोनों एक दूसरे की सवारी कर लें, फिर भी डूबना तो तय है। साथियों, ये चुनाव भारत के भविष्य का चुनाव है। जिन लोगों ने भारत को दशकों पीछे धकेला, देश उन्हें नकार चुका है। देश भूला नहीं है, जब दुनिया तेजी से विकास कर रही थी तब कांग्रेस सरकार घोटालों के कीर्तिमान गढ़ रही थी। दुनिया के देश हर पल आगे बढ़ रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी युवा पीढ़ी को पीछे धकेल रही थी। 60 साल तक ये लोग गरीबी हटाओ का ही नारा लगाते रहे। देश जानता है ये मोदी है जिसने भारत को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया है। ये मोदी है जिसने 10 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। ये मोदी है जिसने दशकों पुरानी समस्याओं का समाधान किया। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा, कश्मीर में आतंकवाद अब अपनी आखिरी सांस ले रहा है। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिला, नक्सलवाद की कमर टूटी, भ्रष्टाचार पर लगाम लगी। कितना कुछ हुआ। गरीब के इस बेटे ने गरीब के हर सुख दुख की चिंता की। गरीबों को बिना कट, बिना कमीशन के पैसा सीधे उनके बैंक अकाउंट में मिलने लगे। पहली बार 4 करोड़ गरीबों को पक्के मकान मिले। 50 करोड़ से ज्यादा गरीबों के बैंक के खाते खुले। हमारी माताओं बहनों को शौचालय मिले, उन्हें उज्ज्वला सिलेंडर मिले, धुएं से आजादी मिली। ये सब किसने किया? 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 ये सब मोदी तो निमित्त है, ये सब आपके एक वोट ने किया है। ये आपके वोट की ताकत है कि जिसके कारण
कभी नहीं हुआ, वो आपके सही वोट ने करके दिखाया। इस बार भी आपका वोट विकसित बंगाल बनाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए। साथियों, जब नीयत ठीक होती है तो इंसान अपने कामकाज का लेखा जोखा बताता है। जब नीयत में खोट होती है तो बहाने बताता रहता है। आज देश देख रहा है, एक और केंद्र में काम करने वाली मोदी सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड देश की जनता को प्रस्तुत कर रही है। दूसरी ओर बंगाल में टीएमसी के पास रिपोर्ट कार्ड नहीं है, उसके पास तो रेट कार्ड है, रेट कार्ड। टीएमसी ने बंगाल में हर नौकरी का रेट कार्ड लगा रखा है। पैसा दो, नौकरी लो। हमारे स्कूल, शिक्षा के मंदिर, इन लोगों ने उनको भी नहीं छोड़ा। टीएमसी के मंत्रियों ने खुलेआम नौकरियों की नीलामी की, नौकरियां बेची। इन्होंने हमारी नई पीढ़ी का भविष्य दांव पर लगा दिया। आप जानते हैं ना, ये सारे घोटाले किसके संरक्षण में हो रहे हैं? कौन भ्रष्टाचारियों के आरोपियों को बचाने में लगा है? कौन सीबीआई को काम नहीं करने दे रहा? साथियों, टीएमसी से बंगाल के लोगों को भी खतरा है, बंगाल की पहचान को भी खतरा है। आज पूरा देश बंगाल की स्थितियों को लेकर बहुत चिंतित है। बंगाल में आए दिन हिंसा होती है, बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्याएं होती है। झारग्राम में भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। बंगाल में दंगे आम बात हो गई है। आदिवासी भाई बहनों की पहचान खत्म करने के प्रयास हो रहे हैं, लेकिन टीएमसी को किसकी चिंता है? टीएमसी को अपने वोट बैंक की चिंता है। ये लोग घुसपैठियों को बुला बुलाकर बसा रहे हैं। सीमावर्ती इलाकों में बंगाल के लोगों की आबादी घट रही है। आप मुझे बताइए, घुसपैठिए हमारे देश में आते हैं, एक किसकी जमीन पे कब्जा करते हैं? हमारे दलित, हमारा पिछड़ा, हमारे आदिवासियों की जमीन पर एक कब्जा करते हैं। भाइयों बहनों, टीएमसी कांग्रेस मिलकर घुसपैठियों के कब्जे को कानूनी बनाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी कह रही है वो सबकी संपत्ति की जांच कराएगी, फिर आपका पैसा, आपकी जमीन अपने वोट जिहाद वालों को, वोट बैंक वालों को दे देंगे। क्या मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपका अधिकार आप किसी को छीनने देंगे? क्या ये बात आपको स्वीकार है? क्या आप होने देंगे? क्या साथियों, बाबा साहब आंबेडकर धर्म के आधार पर आरक्षण के खिलाफ थे। यही हमारे संविधान की मूल भावना है। लेकिन
इंडी गठबंधन वाले पूरे देश में एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण अपने वोट बैंक को देना चाहते हैं। इन्होंने कर्नाटका में ओबीसी का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे भी दिया है। मैंने कांग्रेस और इंडी गठबंधन को 23 अप्रैल को चैलेंज किया था। मैंने कहा था कांग्रेस पार्टी लिख करके दे कि वे कभी भी एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण नहीं छीनेगी और यह आरक्षण मुसलमानों को नहीं देगी। इसके बाद से कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों को सांप सूंघा हुआ है। सांप उनके मुंह पे ताला लग गया है, उनकी बोलती बंद हो गई है। आज 27 दिन हो गए, कांग्रेस ने कोई जवाब नहीं दिया है और मुझे पता है कांग्रेस जवाब देने वाली भी नहीं है। आज ही मैंने सोशल मीडिया पर कांग्रेस के शहजादे का एक वीडियो देखा है। ये बात बड़ी गंभीर है। मैं आप सबसे कहता हूं, मेरी इस बात पर गौर कीजिए। मैं मीडिया वालों को खास कहता हूं, जिन मीडिया वालों ने, जिन इकोसिस्टम ने ये गौर संप्रदायवादी लोगों की चमड़ी बचाने का काम किया है, वो भी जरा कान खुल करके सुन लें। ये वीडियो 11-12 साल पुराना है। ये कांग्रेस के शहजादे का वीडियो है। इस वीडियो में कांग्रेस के शहजादे खुलेआम कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को आरक्षण देगी। एक तरफ उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ये बार बार कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, और दूसरी तरफ रिमोट कंट्रोल से सरकार चला रहे शहजादे का ताल ठोक कर ये कहना कि कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण देगी। यही कांग्रेस की सच्चाई है, जिसे कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम ने बरसों तक देशवासियों के सामने आने नहीं दिया। पिछले दिनों मैंने बहुत सारे टीवी इंटरव्यू दिए, बहुत सारे मीडिया में इंटरव्यू प्रेस में दिए, और हर टीवी वाला आता था, मुझे पूछता था कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में तो नहीं लिखा है। आज मैं बहुत बड़ा सबूत पेश कर रहा हूं। शाहजादा खुद बोल रहे हैं कि वो मुसलमानों को आरक्षण देंगे। यानी इन लोगों में 3 बुराइयां साफ है। एक, ये इंडिया अलायंस वाले, कांग्रेस वाले, उनके साथी पूरी तरह 100% ये कम्युनल है। ये भारत की बिन सांप्रदायिकता के संविधान के घोर विरोधी है। दूसरा, ये घोर जातिवादी है, और तीसरा, ये घोर परिवारवादी है। ये तीनों बुराइयों से भरे हुए हैं लोग। और मैं देश के मीडिया जगत को चुनौती देता हूं, बहुत बचाया इन लोगों को। जिन इकोसिस्टम ने इन लोगों की रक्षा की है, वो जरा कान खोल के सुन ले। आपने देश के संविधान के अपमान को देखा, लेकिन आंखें बंद कर ली। ये कम्युनल लोग, जातिवादी लोग, परिवारवादी लोग मोदी का हिसाब मांग रहे हैं।
और आजकल मैं हर दिन उनका एक अच्छा चिट्ठा सबूतों के साथ खोल रहा हूं कि कितने घोर कम्युनल है, ये कितने घोर बिन सांप्रदायिकता के विरोधी है। ये 100% सांप्रदायिक लोग हैं। कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण देगी और वो भी SC, ST, OBC का आरक्षण छीन करके लूट लेंगे आपका अधिकार। 24 के इस चुनाव में मोदी ने कांग्रेस की इस मुस्लिम लीग की सोच का नकाब उतार दिया है, पर्दाफाश कर दिया है और इसलिए ये लोग बौखलाए हुए हैं और उनकी पूरी इकोसिस्टम इससे बचने के रास्ते खोज रही है। मोदी ने आपको ऐसा पकड़ा है, देश इस चुनाव में आपको सजा देने वाला है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या सामान्य वर्ग के लोग, SC, ST, OBC वर्ग के आप लोग इंडी गठबंधन वालों को, TMC को अपना आरक्षण छीनने देंगे, अपना अधिकार छीनने देंगे? साथियों, बंगाल में आपकी आस्था पर आक्रमण करने की जिम्मेदारी TMC सरकार ने ले रखी है। TMC के नेता कहते हैं कि राम मंदिर तो अपवित्र है। क्या राम मंदिर अपवित्र है? क्या राम मंदिर अपवित्र है? क्या TMC के इरादे अपवित्र है कि नहीं है? अरे TMC सरकार खुद रामनवमी पर रोक लगाने के फरमान जारी करती है। TMC के गुंडों से रामनवमी शोभा यात्राओं पर हमले करवाए जाते हैं। अब तो यहां की मुख्यमंत्री खुद हिंदू संतों को धमकी दे रही है। रामकृष्ण मिशन, इस्कॉन, भारत सेवाश्रम संघ, ये हमारे बंगाल की आध्यात्मिक पहचान है। यहां की CM मंच पर से इन महान संस्थाओं को धमका रही है और इस धमकी ने TMC के गुंडों का हौसला भी बढ़ा दिया है। पता चला है कि जलपाईगुड़ी में रामकृष्ण मिशन के आश्रम में कल रात को तोड़फोड़ की गई है। आश्रम में काम करने वाले कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई है, उनको धमकी दी गई है। ये बंगाल को अब किस तरह ले जा रही है TMC सरकार? कभी बंगाल में रामकृष्ण मिशन को धमकियां मिलेगी, आश्रम में तोड़फोड़ होगी, क्या किसी देशवासी ने कभी सोचा था? लेकिन अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए TMC सरकार हद पार कर रही है। रामकृष्ण मिशन का अपमान, हमारे संतों का यह अपमान बंगाल कभी भी सहन नहीं करेगा। और पूरा देश जानता है मेरे जीवन को गढ़ने में रामकृष्ण मिशन का कितना बड़ा योगदान है, मेरा रामकृष्ण मिशन से कैसा निकट का नाता है। प्रधानमंत्री होने के बाद भी जब भी अवसर मिला, अगर रात्रि को रुकना था तो रामकृष्ण मिशन के सन्यासियों के साथ जाकर के रुकता हूं। साथियों, कांग्रेस और TMC के लोगों ने हमेशा आदिवासियों को आगे बढ़ने से रोका है। आपको पता है ना, देश में पहली बार एक महिला आदिवासी को राष्ट्रपति किसने बनाया? बीजेपी ने बनाया। लेकिन आदिवासी महिलाओं को चुनाव हराने के लिए कौन कौन पार्टियां इकट्ठा हुई थी? ये सारे TMC वाले,
ये सारे कांग्रेस वाले, ये सारे वाम वाले, इन सब ने देश की आदिवासी बेटी को राष्ट्रपति बनने से रोकने की दिन रात कोशिशें की थी, लेकिन मोदी है, उनके आगे उनकी चलती नहीं है। टीएमसी ने अपनी पार्टी के नेता को उनके खिलाफ उतारा था। आप मुझे बताइए, जो लोग आदिवासी महिला को राष्ट्रपति नहीं बनने देना चाहते, उन्हें आप लोगों के पास आकर के वोट मांगने का अधिकार है क्या? उन्होंने आपसे विश्वासघात किया है कि नहीं किया है? आपसे अन्याय किया है कि नहीं किया है? तो ऐसे लोगों को घुसने देंगे क्या? साफ कर देंगे ना इस चुनाव में? साथियों, मोदी बंगाल के विकास के लिए काम कर रहा है। 2019 में आपने बीजेपी को मौका दिया, मैंने विकास के लिए पूरी ताकत लगा दी। हमने झारग्राम में नया मेडिकल कॉलेज खोला, हमने बंगाल की रेल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए काम किया, हमने यहां झारग्राम चाकुलिया की तीसरी लाइन का निर्माण किया, रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाया, हमारा झारग्राम स्टेशन भी अमृत स्टेशन बन रहा है। लेकिन साथियों, जहां कानून व्यवस्था तबाह होती है, वहां निवेश पर भी असर पड़ता है और उद्योगों का विकास भी नहीं होता है। हमारा मेदिनीपुर और तामलुक उद्योग की संभावनाओं से भरा हुआ है। वहां पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री की अपनी पहचान रही है, लेकिन इतने साल से टीएमसी बंगाल में काबिज है। टीएमसी सरकार ने यहाँ के उद्योगों को आगे नहीं बढ़ने दिया। और सिर्फ तामलुक की ही बात नहीं है, ये पूरे बंगाल का दुर्भाग्य है। साथियों, आपका एक वोट टीएमसी के पूरे सिंडिकेट पर भारी पड़ेगा। इस बार पार्टी ने तामलुक से जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय जी और कांथी से सोमेंदु अधिकारी जी को जिम्मेदारी दी है। आप झारग्राम से मेरे साथी डॉक्टर प्रणव टुडू को भी भारी वोटों से जिताए। तामलुक में और झारग्राम में आपका दिया हुआ हर वोट सीधा मोदी के खाते में जमा होगा। इनको दिया गया एक एक वोट बंगाल को अंधेरे से रोशनी की ओर ले जाएगा। मोदी आपके सपने पूरे करने के लिए दिन रात काम करेगा। आप मेरा एक काम करेंगे, आप मेरा एक काम करेंगे, जरा दोनों हाथ ऊपर करके बताइए, मेरा काम करेंगे। आप गांव-गांव ज्यादा से ज्यादा परिवार में जाना और हर परिवार में जाकर के कहना कि अपने मोदी जी आए थे और मोदी जी ने आपको प्रणाम कहा है। मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे, मेरा जोहार पहुंचा देंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। Successful consignment